Okay, so let us now start with exercise 4a, okay, from your chapter quadratic equations. So देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ओके. वो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यू चेक वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. सो फ्रॉम देयर आई फाउंड आउट क्वेश्चन नंबर 5. maybe it might be a little tougher for you, okay, because you are beginners now, might be, okay. जो लोग experts हैं no problem, but those who are still in a learning stage, okay, so उसके लिए मैं solve कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर 1 to 4 you can easily do it with an ease, okay. so क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग फोकस करते हैं. so what does this question says, that whether it's a quadratic equation or not, and सब नंबर 5 में लिखा है 3x square minus 5x plus 7, 3x squared minus 5x plus 7 equals to x square minus 5x, x square minus 5x plus 1, okay, plus 1. So this is a question, okay, question number 1 sub number 5. So बोला गया कि वे चेक करो कि whether ये quadratic equation है कि नहीं है, isn't it? And you know the tricks how to identify it. Highest power of the variable should be 2, है ना. सो यहाँ में तो देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना तो पड़ेगा. सो हाउ टू सॉल्व इट? व्हेनेवर यू गेट दिस टू टाइप्स ऑफ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशंस दिया है, राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशंस दिया है. सो एक चीज याद रखना, ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट इट इन द जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. सिंपल एज दैट, okay. Whatever expression, whatever equation is given to you, do not worry, always try to express it in terms of ax square plus bx plus c. ये फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करो. If you can express it in this form, then yes, it will be a quadratic equation. तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं whether it's a quadratic equation or not. Okay. Now if you see here, all the terms are present on the left hand side. So हम लोग first target क्या होगा? To shift all the terms from the right hand side to the left hand side. ओके, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म में हो जाएगा ये. सो लेट्स ट्राई इट. सो कैसे करेंगे उसको? तो एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलो करते हैं. सो विल राइट द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. ओके, नाउ विल शिफ्ट ऑल दिस टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. So you can see it's a positive x square. When it changes its side, it will become negative x square. So minus x squared. It's a negative 5x. When it will change its side, it will become a positive 5x. So plus 5x. It's a positive constant plus 1. When it will change its side, it will become a negative constant minus 1 equal to. So we have shifted all these terms to the left hand side. So we have nothing on this left hand side. Nothing matlab 0. है ना? Okay. Now you see, we'll arrange all these coefficients, all these variables together like variables. So you can see here x square and x square, they can be equated. X, they can be equated. 7, 1, these are constant, they can be equated. Fine? Okay. So कैसे solve करना है? 3x squared minus x squared. So 3x squared minus x squared will be 2x squared. So we'll get here 2x squared. Minus 5x plus 5x will cancel each other. So plus 7 minus 1. So plus 7 minus 1 is plus 6. So plus 6 equal to 0. Let's see, have we represented this in this form? चलो चेक कर लेते हैं. So what we have got 2x squared. x तो है नहीं. So if there is no x, what I told you, consider that b as 0. Very good. So we have got 2x squared plus 0x, because x तो है नहीं equation में, and we have got a constant plus 6 equal to 0. Yes, we have represented this equation, okay, this given equation in the form of ax square plus bx plus c, where the value of x is 2, the value of b is 0, and the value of c is 6. So yes, this question number 1 sub number 5 is a quadratic equation. Okay, so I hope you are clear with this sub number. Let us now solve sub number 6. Sub number 6 is also same. Okay, तो चलो मैं फिर भी अब तुम लोग को दिखा देता हूँ. Okay, it's very easy. But question number 1, sub number 1 to sub number 4, please try to do it by yourself, because you know the concept. You have gained the concept, right? तो ये मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ. Okay, and I'm pretty sure each and everyone who is in this channel, who all are associated with the channel, will be easily able to solve it. ओके, है ना? जेडी एक्सप्लेन्स का स्टूडेंट हो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इजंट इट? ओके, सो तो सब नंबर 6 में क्या लिखा है हम लोग एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज रिटन इन सब नंबर 6? x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर्ड माइनस 4x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर्ड माइनस 2x.
ओके हम लोग को चेक करना है कि वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलो सो व्हाट इज आवर फर्स्ट टारगेट कि हम लोग इसको ये फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। ओके और एक चीज द वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैं ये चीज बोलना भूल गया था बट लिख लेना किसी भी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a का वैल्यू 0 हो गया ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। सो द वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, डज नॉट मैटर, इट कैन बी, मैटर नहीं करता है, बट वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिमाग में डाल लेना एंड प्लीज नोट इट डाउन। ओके दिस इज अ गिवन एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन, एंड वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कीप इन माइंड। ओके सो हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, विल शिफ्ट ऑल दिस टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेट्स स्टार्ट। सो x स्क्वायर्ड लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ओके फाइन। नाउ दिस पॉजिटिव x स्क्वायर विल चेंज इट्स साइड, इट विल बिकम अ नेगेटिव x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। This is a negative 2x, it will change its side, it will become plus 2x. So plus 2x equals to 0. है ना? Okay. Now if you see here, these are like variables. One is positive, one is negative. We can easily cancel each other. So हो गया cancel. अभी देखो ये expression हो गया minus 2x. Minus 2x equal to 0. अभी यहाँ में देखो, in this case do we have x square? Do x square really exist? नहीं, वो exist नहीं कर रहा है. Exist नहीं कर रहा है means what? The value of a should be equal to 0. 0x स्क्वायर हो जाएगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बट यहां में तो a का वैल्यू 0 आ रहा है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर 6 इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहां में x स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइन। ओके सो वी आर क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके लेट्स नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। बट कीप इन माइंड जो इजी क्वेश्चंस होंगे, okay I may leave it to you, okay, but जो complicated होगा which I feel may not be comfortable for you, so those questions I will focus more. Fine. Okay so let's start with question number 2. Okay so this is question number 2 sub number 1. What does this question says? वो सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम क्वेश्चन है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस विल बी प्रेजेंटेड टू यू, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ओके सो लेट्स सी वेदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फाइन। ओके नाउ यू सी ये एक ना फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल, सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्या दिक्कत है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग का टारगेट क्या है? वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो विल सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट बिकॉज ये देखो एक ना फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। सो हाउ टू सॉल्व इट? सो फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन तो किए होंगे, इजंट? यू हैव ऑलरेडी डन, यू हैव बेटर आइडिया ऑन दिस। तो चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। सो फर्स्ट विल डू, एक एलसीएम लिया जाता है यहाँ में। सो यू हैव टेकन x into x will become x squared minus x and x will get cancel, so 1 into 1 will be 1. ठीक है? ओके इक्वल टू x squared। और एक चीज यहां में और मेंशन किया गया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन? अगर x का वैल्यू 0 हो गया ना तो x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर इज 0। तो अगर x स्क्वायर 0 हो गया तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो तुमको ऐसे सॉल्व करना है कि x का वैल्यू 0 ना हो, दैट्स ऑल। सो हियर इन दिस केस ये पता चल गया मैंने क्या किया। 1 सेकेंड लेट मी शो यू। सो आई विल टेक वन एलसीएम हियर, इसके नीचे 1 है, तुम लोगों को पता है। ओके मैं एक बार डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके फ्रैक्शनल एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस पर। सो डिनोमिनेटर में क्या है? 1। सो 1 into x इज x। नाउ x डिवाइड बाय 1 विल बी x। देखो ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसके साथ ये डिवाइड होता है, वट एवर प्रोडक्ट यू विल गेट उसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर। दैट्स द ट्रिक। सो हियर व्हाट विल हैपन, इट्स अ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होगा। सो x by 1 is x into x will be x squared. The same thing values here. X by x is 1. 1 into 1 is 1. So minus sign, so minus 1. Fine. Equal to x square. Okay. Now what happens here? You see cross multiplication होगा अभी. X into x square will become x cube. So I can write here x square minus 1 is equal to x cube because ये cross multiply हो जाएगा. X into x square will become x cube. Now you see what I told you already. सब टर्म्स को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, बट इफ यू वांट यू कैन शिफ्ट दिस लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ऑल्सो, है ना। एक चीज याद रखना, हम लोग का जब भी हाईएस्ट डिग्री होता ना, हाईएस्ट डिग्री
should not contain a negative sign, should not contain नेगेटिव साइन। इसमें ना कभी नेगेटिव साइन मत रखना। जो भी इक्वेशंस हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना वेरिएबल का, उसमें नेगेटिव साइन मत रखना। सपोज इफ आई राइट वन इक्वेशन फॉर यू, -2x² + 3x + 1 = 0, करेक्ट है, इट्स नॉट रॉन्ग, करेक्ट नहीं है कि ऐसा नहीं है, करेक्ट है। बट द थिंग इज दैट इट डज नॉट लुक्स गुड बिकॉज यहाँ में x² हाईएस्ट वेरिएबल है, सो नेगेटिव साइन इसके साथ एडजस्ट नहीं होता है। ओके, लगता है कि छोटा है, नेगेटिव हमेशा छोटा होता है, isn't it? So for that what we'll do, we multiply this entire equation with negative, so all the negative terms हो जाएगा पॉजिटिव, all the positive will become negative। ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग का लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में। सो टिल फॉर द टाइमिंग जस्ट ये चीज़ याद रखना कि जब भी ना कोई हाईएस्ट डिग्री हो उसमें नेगेटिव टर्म मत रखना, बस दैट्स ऑल। सो इन दिस केस इफ आई ब्रिंग दिस x³ टू द अदर साइड, ये -x³ हो जाएगा। सो इससे ये ना अच्छा हो, आई कैन शिफ्ट दिस टर्म टू दिस साइड, x² -1 को ये साइड में लेके जाओ, अच्छा लगेगा देखने में। सो व्हाट विल गेट हियर, सब टर्म्स ले गया तो 0 हो जाएगा ये। सो 0 = x³ + x² विल बिकम -x², -x², -1 विल बिकम +1। सो मैंने ये एक डिटेल स्टेप दिखाया, बट इफ यू वांट यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो। तुम ना ये टर्म्स को डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो। सम स्टूडेंट दे गेट कॉन्फ्यूज, वो लोग कैसे कॉन्फ्यूज होते हैं, दे थिंक दैट x³ तो नहीं गया ये साइड में, तो x³ तो नेगेटिव होना चाहिए था, इसको पॉजिटिव, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, x³ को नेगेटिव कर देंगे, एंड दे विल लैंड देमसेल्फ इनटू ट्रबल, है ना। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को ये सोचना है कि मैं जहां में भी शिफ्ट करूं सब टर्म शिफ्ट होना है, दैट्स ऑल। सो यू सी हियर आई हैव शिफ्टेड x² -1 टू दिस साइड, तो मैं अगर ये साइड में लिया तो इसको मैं ये साइड में भी तो ला सकता हूँ। सो ये डिटेल स्टेप आई हैव शोन यू अ डिटेल स्टेप हियर, ओके। तो ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल राइट दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 0 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, सेम थिंग। सो x³ -x² + 1 = 0। नाउ दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, द फाइनल इक्वेशन। तो अभी ये फाइनल इक्वेशन में इफ वी सी, इज आवर हाईएस्ट डिग्री 2, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या 2 है? इट्स नॉट। So if the highest degree is not 2, so I can say it's not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है, because it's not represented in the form ax² + bx + c. Simple thing. Highest degree 2 नहीं है, मतलब ये quadratic equation नहीं है. It's not a quadratic equation. So this is your sub number 1. Okay. Let us now solve sub number 2. Okay. Sub number 2 मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. So question number 2, sub number 2 says all the questions are basically same. कुछ टफ नहीं है, ओके। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर कोई वीक है टू अंडरस्टैंड, ओके, खुद को वीक मत समझो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। मैं तुम लोग को पूरा हेल्प करूँगा, ओके, एकदम प्रॉमिस है, मेरा वादा है सबसे, ओके। रिजल्ट बेस्ट होना ही है, ओके। मैं जैसा दिखा रहा हूँ सेम टू सेम वे में सॉल्व करो। हाँ, कुछ शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जैसा डिटेल करना है। वाई एम आई शोइंग यू डिटेल्ड? बिकॉज अगर मैं डिटेल दिखाऊंगा तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं शॉर्टकट दिखा दूंगा तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर कहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई किया? सो माई वीडियो मे बिकम लॉन्गर। तो मत सोचना कि लॉन्ग वीडियो है, बोरिंग है, मैं ना दिखूँ। डोंट डू दैट। डिटेल वीडियो आर ऑलवेज लॉन्गर, ओके। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ में, A to Z पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा। सो स्किप नहीं करना है, ओके। इफ़ यू रियली वांट टू डू बेटर रिजल्ट्स, डोंट स्किप, ओके। धीरे धीरे टेक योर टाइम, लर्न करो। इट्स अ डिजिटल एज, आराम से लर्न करो, प्रॉब्लम नहीं है। वाट एवर आई एम डूइंग, नोट इट डाउन इन द कॉपी। वाट एवर ट्रिक्स आई एम शोइंग टू यू, नोट इट डाउन इन द कॉपी, ओके। इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई एम एश्योरिंग यू दैट, ओके, क्योंकि मैं अपना स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। फाइन, ओके। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सब नंबर 2। सो सब नंबर 2 says x² - 1 by x², x² - 1 by x² equal to 3, and x should not be equal to 0. x का वैल्यू 0 नहीं होना है, ओके। नाउ इज द सेम वे, ओके। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो x² मैंने ऑलरेडी बोल दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, ओके। कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। सो दिस वैल्यू and 1 will get divided. So x² by 1 will be x². x² into x², ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। 1 second, let me show you. x² by 1 is x²,
x squared into x square will be x to the power 4. वेरी गुड, x to the power 4. ठीक है, माइनस x square by x square दोनों कैंसिल हो जाएगा 1. 1 into 1 will be 1. So x to the power 4 minus 1 equal to 3. ठीक है ना? ओके, नाउ व्हाट वी हैव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू x square यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव इन द इक्वेशन x to the power 4 minus 1 equal to 3x squared. ओके, x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर. ओके, एंड और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ. ओके, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ में. ओके, सो वरी नहीं करना है. और मैं एक चीज़ और बोल दिया था ऑलरेडी. ओके, कि एज वी प्रोसीड हम लोग को बहुत नया चीज़ सीखने को मिलेगा यहाँ में, है ना. सो और एक नया चीज़ यहाँ में सीखने को मिला. व्हाट इज दैट? वेन एवर वी राइट एनी इक्वेशंस, एनी एक्सप्रेशंस, एक्चुअली एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, व्हाट एवर, वी शुड ऑलवेज गो इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है. कैसे? सपोज मैं इक्वेशन शो कर रहा हूं तुम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है. सॉरी 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, दोनों सेम इक्वेशन यू सी. ओके, डोंट कंसीडर दिस इज 2, मैंने इसको रब कर दिया. ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, दोनों सेम इक्वेशन है, बट दिस इज मोर एप्रोप्रिएट. Do you know the reason why? Because you see the highest power of the variable is 2. The next power of the variable, जो second next power है variable का, वो 1 है. अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना. Yes. And 1 के साथ भी x है, तुम लोग को पता ही है. ये 1 के साथ भी x है. But here the power of x is 0. x का पावर यहाँ में क्या है? वो 0 है. Because anything to the power of 0 is 1 only. है ना? So if you see the variables are arranged in descending order. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है. दैट्स द रूल. ओके, दोनों सेम इक्वेशन है, बट दिस मोर एप्रोप्रिएट. व्हाई? बिकॉज वी हैव अरेंज दिस वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लेना ये पॉइंट. ओके, चलो. सो व्हाट वी हैव फाउंड इज दैट x to the power 4 minus 1 equal to 3x squared. मैंने क्या बोला था? वी हैव टू शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड. सो व्हाट विल गेट हियर, और एक डिटेल स्टेप होगा यहाँ में. x to the power 4 minus 1 ये प्लस 3x स्क्वायर है. व्हेन इट कम्स टू द अदर साइड बिकॉज माइनस 3x स्क्वायर, सो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. फाइन, इक्वल टू 0. अभी देखो ये ना अरेंज नहीं है, इट्स नॉट अरेंज, तो हम लोग को अरेंज करना है. कैसे अरेंज करना है? x to the power 4 minus 3x squared minus 1 equals to 0. Now it's arranged. x to the power 4 3x squared minus 1, ये अरेंज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है. देखो x to the power 4 x square x to the power 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में है. देखो हम लोग को ना ये इक्वेशन देख के हम लोग को पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. देन व्हाई डिड आई शो यू दिस स्टेप? ऐसा ही टाइम पास के लिए? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोग को एक एक स्टेप सीखना है. ओके, दो दिस स्टेप्स मे नॉट बी मैंडेटरी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, देखो बोर्ड एग्जाम एक डिफरेंट लेवल में होता है. ओके, बट उससे पहले हम लोग का टारगेट होता है ना, वी शुड लर्न इन टू डिटेल, तभी तो हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग का आंसर. अगर एक्सपर्ट नहीं हो, अगर स्टेप्स तुम लोग को नहीं पता, देन हाउ विल यू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ योर आंसर विल बिकम प्रेजेंटेबल. सो यू शुड हैव एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ व्हाट एवर यू आर डूइंग. सो यहाँ में हम लोग का इन डेप्थ नॉलेज हो गया कि हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया. अभी देखो, इज द हाइस्ट पावर ऑफ x is 2? इट्स नॉट. द हाइस्ट पावर ऑफ x is 4. So can I say it's not a quadratic equation? Yes, it's not a quadratic equation. ये question number 2 sub number 2 quadratic equation नहीं है. Why? Because the highest power of the variable is not 2. ठीक है? तो चलो let's start with discuss with question number 3 and 4. Basically these are same question, same type है. So let's not waste our time in question number 2. I'm leaving it to you and I'm 100% sure you can do it. Okay, please do it. If any of the student unable to solve this question, sub number 3 sub number 4, just comment me, okay, in the comment box. I will solve it for you. Okay, but पहले खुद तो ट्राई करो. टीचर के ऊपर इतना डिपेंडेबल नहीं होना है, खुद ट्राई करना है. टीचर का काम क्या है? टू शो यू द ट्रैक, टू शो यू द पाथ. मैं डिटेल्स पाथ दिखा रहा हूँ तुम लोग को. ओके, कोई कुछ भी मिस आउट नहीं होगा. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल, आई एम एश्योरिंग यू. बट खुद तो अल्टीमेटली तुमको ही ट्राई करना है, isn't it? You have to try it. So चलो
नो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सब नंबर 3 एंड सब नंबर 4 आई एम लीविंग इट टू यू एंड आई एम 100% श्योर यू कैन डू इट. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 सब नंबर 1. सेम क्वेश्चन, 1 2 3 सेम क्वेश्चन है. चेक करना है कि वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. Okay, sub number 1 says x plus 2 whole cube equal to x cube minus 6. ये quadratic equation है कि नहीं है? Some students will be there who might be thinking x cube है, quadratic equation तो हो सकता है, क्यों नहीं? But solve करो. Directly we should not judge a book by its cover. ये एक चीज़ है, you should keep in mind. So हो सकता है x cube cancel हो जाए, तो x square बाकी रह जाए, हो सकता है ऐसा, why not? सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो एक्स क्यूब, क्वाड्रेटिक, सर तो बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो हमें तो हाईएस्ट डिग्री 3 होना 2 होना है, बट यहाँ में देखो एक्स क्यूब कैंसिल भी हो सकता है, क्या गारंटी है? सो वी शुड सॉल्व दिस फर्स्ट. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर प्रोवाइडेड विद एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. क्या है वो? x plus 2 whole cube, that is a plus b whole cube. If you studied in class 9, a plus b whole cube. Just pause the video once and try to answer this question. What is the formula of a plus b whole cube? It's an algebraic expression. Please pause the video. Okay, I hope you got the answer. Okay, and those who ever got the answer, a big round of applause for you all. So, चलो देखते हैं a plus b whole cube. So formula क्या है? a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. याद आया? क्लास 9 में सॉल्व किया था. ओके, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके, तो चलो, सो यहाँ में a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है. a इज x, b इज 2. फॉर्मूला लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सो फर्स्ट विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a इज x, a स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर बिकॉज b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर बी, a cube plus 3a square b. Okay, 3a square b plus 3a b square. Okay, 3ab square plus b cube. So here what I did, I applied the formula of a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube equal to x cube minus 6, equal to x cube minus 6. Okay, so this is the expression we have written here. अभी हम लोग solve करेंगे इसको further. So x cube plus 3 to the 6, we have got 6x squared plus 2 square will be 4, 4 3 is 12, so we have got 12x plus 8, 12. Okay, so 2 cube is 8. So you see, once again let me show you. X cube plus 3 to the 6 x squared plus 2 square is 4, 4 3 is 12 x plus 2 cube is 8 equal to x cube minus 6. कुछ बैकग्राउंड साउंड हो रहा है, सो प्लीज इग्नोर इट. ओके, डोंट गेट डीफोकस्ड विद द साउंड्स. ओके, बिकॉज ये रूम है. ओके, सो बैकग्राउंड साउंड्स तो आएगा ही, इजंट इट? सो जस्ट उसमें ध्यान मत दो, यहाँ में कॉन्सेंट्रेट करो. फाइन. सो हियर यू कैन सी हियर, ये जो x क्यूब है, अभी हम लोग थोड़ा इजी वे में करेंगे, थोड़ा सो क्या बोलते हैं, मास्टर वे में सॉल्व करेंगे. ओके, ये वो शिफ्ट करना, ये करना, डायरेक्टली वी कैन डू इट नाउ. ओके, बिकॉज आई नो यू आर ऑल ट्रेन्ड नाउ बाय द टाइम. सो यू कैन सी दिस इज x क्यूब, दिस इज ऑल्सो x क्यूब, बोथ आर लाइक वेरिएबल्स एंड दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोथ आर लाइक वेरिएबल्स, दोनों का साइन पॉजिटिव है, दोनों का कोएफिशिएंट इज सेम. इसका भी 1x क्यूब, इसका भी 1x क्यूब. Now in that situation, when these two like variables are present on the different side, इसका साइन भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल इज ऑल्सो सेम लाइक वेरिएबल्स, बट बोथ आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड. वी कैन कैंसिल देम, हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं. ओके, बट अगर इसका साइन नेगेटिव हो, वंस अगेन देखो, दोनों लाइक वेरिएबल्स है, करेक्ट, दोनों का साइन सेम है, करेक्ट, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, करेक्ट, दोनों दूसरे साइड में प्रेजेंट, बोथ आर सेवन ऑन द प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, ऑपोजिट साइड, वन इज लेफ्ट हैंड साइड, वन इज राइट हैंड साइड. सो वी कैन कैंसिल देम. बट यहां में अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल ना हो ना, क्या फुलफिल ना हो? सपोज कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, वी कैन नॉट कैंसिल इट. सपोज द साइन आर डिफरेंट, वी कैन नॉट कैंसिल इट. सपोज यहां में किसी एक का वेरिएबल का साइन अगर नेगेटिव हुआ, आई कैन नॉट कैंसिल इट, बिकॉज ये जब
शिफ्ट हो जाएगा ऑन द अदर साइड, वो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वाला चीज याद रखना, ओके। दोनों लाइक वेरिएबल्स है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन सेम है, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आई कैन कैंसिल देम, फाइन। तो जब एग्जाम में आए ना, तुम लोग को ये स्टेप, शिफ्ट करने वाला स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट, व्हाई टू वेस्ट टाइम अननेसेसरीली, यू कैन डायरेक्टली कैंसिल देम, ओके। सो वी आर प्रोसीडिंग टू मास्टर स्टेप्स, ओके। चलो, सो अभी क्या क्या बाकी है? वी हैव गॉट 6x स्क्वायर्ड प्लस 12x, यहाँ में कोई x तो है नहीं, प्लस 8। नाउ यू सी दिस 6 इज अ कांस्टेंट, सो ये जब यहाँ में शिफ्ट हो जाएगा, दिस नेगेटिव 6 विल बिकम पॉजिटिव 6, सो विल हैव प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली आवर इक्वेशन विल बिकम 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 प्लस 6 विल बी 14 इक्वल टू 0। अभी देखो, इज दिस एक्सप्रेशन रिजेंबल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c? उसका हाईएस्ट डिग्री क्या 2 है? यस, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, एंड यस इट रियली रिप्रेजेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो देख लेते हैं। ax स्क्वायर, a का वैल्यू 6 प्लस bx, b का वैल्यू 12 प्लस 14, c का वैल्यू 14 इक्वल टू 0। डन। सो इट्स अ quadratic equation. So question number 3, sub number 1 is a quadratic equation. Okay, I hope you are clear with this. So let's now solve sub number 2. Let's see the question first. Sub number 2 देख लेते हैं। Okay, I can solve this question, no problem. ये थोड़ा अगर complicated है, I will solve it. अगर easy है, then I will leave it to you. Okay? Because खुद अगर जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना, you will not learn. Okay? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम लोग को खुद भी ट्राई करना है, isn't it? We should not rely on others. खुद प्रैक्टिस करना है। देखने में तो इजी लगेगा, ऐसा है कि बहुत इजी है, बट समटाइम्स व्हेन वी लैक प्रैक्टिस ना, एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी टफ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 3 सब नंबर 2 पे चलते हैं। लाओ, ओके। सो व्हाट इज दिस? सब नंबर 2 सेज, इट सेज 16x स्क्वायर्ड, 16x स्क्वायर्ड माइनस 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 5, and we have 5x minus 3, 5x minus 3. So this is what we have in question number 3 sub number 2. Let's solve it, okay? So यहाँ में देखो 16x square minus 5 हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ में, okay? So leave it as it is. But we can solve something in the right hand side. तो उसको पहले solve कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे because we have nothing to do with this. So I will keep left hand side as it is. So what we have 16x squared minus 5. इसको सॉल्व करेंगे। सो यू नो द ट्रिक्स टू सॉल्व इट। इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ इसको करेंगे, देन विल प्रोसीड विद द सेकंड टर्म। विल डू दिस, फाइन। सो 3x इंटू 5 इज 3 5 15, x इंटू x विल बिकम x स्क्वायर्ड, माइनस बिकॉज प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, 3 इंटू 3 इज 9, x इंटू 1 इज x। ओके, देखो वंस अगेन मैं तुम लोग को शो करता हूँ। ये जो 3x है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू 5x, अगेन 3x इंटू माइनस 3। Similarly, this 5 will multiply with this, 5 into 5x, 5 into minus 3 हो जाएगा। So यहाँ में क्या मिलेगा हम लोग? Let me rub this arrows. So 3x का तो हो गया, 3 into 5 is 15, x into x, x squared, plus into minus is minus, 3 3s are 9, x into x is x, fine. Plus 5 5s are 25, 25 into x, plus into minus minus, 5 3s are 15. So we have solved this part, fine, okay. Now what we have 16x squared minus 5. यहाँ में अगर कुछ like variables है, हम लोग उसको पहले solve करना है. We have to solve it. So 15x squared, we have 15x squared, okay. Minus 9x and plus 25x, we have got like variables. We can solve this. We can equate it. चलो देखते हैं. Minus 9 plus 25 कितना होता है? 25 minus 9 करने से 5, it will be 16, okay. So positive sign is greater, we'll get plus 16x. एंड यहाँ में कुछ नहीं है, सो आई विल राइट माइनस 15, ओके. सो बेसिकली हम लोग का वो जनरल स्टेप है वही मिल गया. वी हैव टू शिफ्ट ऑल दिस टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, है ना. जो पॉसिबिलिटी है, यू कैन शिफ्ट द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. यहाँ में 16x स्क्वायर बड़ा है, सो आई कैन शिफ्ट दिस टर्म, या नेगेटिव साइन नहीं आएगा, है ना. तो ये खुद चॉइस कर सकते हो कौन सा टर्म्स कहाँ में शिफ्ट करना है, ओके. इतना कुछ डिटेल में बोलने का है जरूरत नहीं है. चलो, सो व्हाट वी हैव 16x स्क्वायर्ड then minus 5. Now you see this 15x square will come here. It's positive 15x square. When it's changed its side, वो हो जाएगा negative 15 square. So minus 15x squared. Then this positive 16x, it will become minus 16x. This is a negative 15. It will become plus 15 equals to 0. Fine. Okay.
नाउ व्हाट वी हैव, ऑल द लाइक टर्म्स जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सो 16x² माइनस 15x² इज x², 1x². 1 तो लिखने का जरूरत है नहीं, सो आई कैन राइट x². सो कांस्टेंट है, आई विल राइट एट द लास्ट. कांस्टेंट को हमेशा लास्ट में लिखना है. ओके, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, सो आई विल राइट इन द लास्ट. नेक्स्ट व्हाट टर्म वी हैव 16x, सो आई विल राइट माइनस 16x. ओके, सो 16x हो गया. अभी 15 और 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट नाउ, दिस आर लाइक टर्म्स. सो पॉजिटिव 15 माइनस 5, सो पॉजिटिव साइन इज ग्रेटर, सो सब्ट्रैक्शन होगा. सो 15 माइनस 5 इज 10, सो वी हैव प्लस 10 इक्वल्स टू 0. अभी देखो ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन. इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस. व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज x². कैन आई रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एज ax² plus bx plus c? Obviously yes. How? What is the value of x here? Pause the video and try to answer it in your copy. Please pause the video. Okay, I hope you got the answer. So the value of a is 1. The value of b is minus 16, negative, है ना? And the value of c is 10. Okay? So ये हो गया. Mandatory नहीं था. तुम लोग को सिर्फ चॉइस करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बट एडिशनली मैं दिखा दिया. ओके, इन केस इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स यू शुड नॉट गेट अफ्रेड. ओके, पॉजिटिवली सॉल्व करना है. फाइन. ओके, सो यस, दिस क्वेश्चन नंबर 3 सब नंबर 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो लेट्स सी हाउ डज दिस क्वेश्चन नंबर सब नंबर 4 लुक्स लाइक, सॉरी सब नंबर 3 लुक्स लाइक. 2 हो गया. ओके, 1 2 पॉजिटिवली हो गया. अभी 3 देखते हैं कैसा है. So sub number 3 says this x. So sub number 3, I'm leaving it to you. Okay, I'm leaving it to you, and I'm 100% sure you can do sub number 3. I'm 100% sure. Sub number 4 is also same, but चलो sub number 4 मैं दिखा देता हूँ because sub number 3 and sub number 4 में एक relation है. So if I show you sub number 4, sub number 3 you can solve it. Okay, तो चलो हम लोग sub number 4 को पहले solve करेंगे. Okay, क्या relation है? I will show you that relation. Okay, it's very easy. नीड नॉट टू वरी. जेडी एक्सपीरियंस के स्टूडेंट हो, वरी करने का कोई ज़रूरत है नहीं. ओके, सिंपल कॉन्सेंट्रेट करना है एंड सॉल्व करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 सब नंबर 4. सब नंबर 4 में क्या दिया है? लेट अस सी. सो वी हैव 2x plus 1 अंडर ब्रैकेट, 2x plus 1 अंडर ब्रैकेट, देन 3x plus 2, 3x plus 2, then equals to 3x minus 1 and x plus 2, and we have x plus 2. So this is our question number 3 sub number 4. now यहाँ पे क्या रिलेशन है? if you see in question number 3 sub number 3, okay, sub number 3 में क्या है? ये ऐसा एक सिमिलर टर्म दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इसको दिखा दूंगा हाउ टू सॉल्व. ओके, अगर ये दिखा दिया तो यू कैन इजीली सॉल्व सब नंबर 3. ओके, तो चलो लेट अस फाइंड इट आउट. So you see in this case दोनों साइड में हमको सॉल्व करना है. ओके, वी हैव टू सॉल्व इन द बोथ साइड. व्हाई? बिकॉज बोथ साइड में हमको काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस दिया है. वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो फर्स्ट विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड सेम वे सब नंबर 2 जैसा. सो व्हाट वी हैव, 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा. आफ्टर दैट 1 इसके साथ, 1 इसके साथ. वेरी सिंपल. सो 2x into 3x. So we have 2 3s are 6. x into x is x². Fine. 2 into 2 is 4. Positive, दोनों ही पॉजिटिव है, so I will write plus. 2 into 2 is 4x. Fine. So 2x का काम हो गया है. Let's now move to 1. So plus 1 into 3x, 3x. 1 into 2, 2. हो गया. Fine. Okay. Now यहाँ में क्या है? ये देखो, हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे. Let us solve this first. 3 के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे, then we'll solve this. So 3 into x will be how much? 3x. So we'll write 3x. 3 into minus 1 will be minus 3. I will put this entire term inside the bracket. Then I will write x plus 2. x plus 2. Fine? Okay. So ये पार्ट समझ में आ गया ना? Okay. So 3 into x is 3x. 3 into minus 1 is minus 3. Then I put inside this bracket. इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया. ये तो ठीक है, लाइक टर्म्स है, सॉल्व करेंगे. So what we have? 6x squared. 4 plus 3 is 7. So we have 7x plus 2. Okay, 6x squared plus 7x plus 2 equals to, same way, 3x into x, 3 into 2, again minus 3 into x, minus 3 into 2. So 3x into x will be 3x squared. 3x into 2 will be 6x plus 6x. Then what we have minus 3x, minus 3 plus 2, sorry, minus 6, minus 6.
ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड दिस पार्ट एज वेल. यहाँ में लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर देंगे. सो व्हाट वी हैव गॉट 6x स्क्वायर्ड प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड. 6 माइनस 3 इज प्लस 3, ओके, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन भरा है. सो प्लस 3 इंटू प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, सॉरी प्लस 6 क्या बोल रहा हूँ. सो प्लस 6 माइनस 3 विल बिकम प्लस 3, x हो जाएगा minus 6. Now you see we have arranged these equations in the same way. So now I'm ready to shift all the terms to the left hand side. चलो, what we have 6x squared plus 7x लिख लेता हूँ plus 2. Let's shift this term. Positive 3 है, हो जाएगा minus 3x. So minus 3x squared. Positive 3x will become minus 3x. Negative 6 will become positive 6 because they have shifted their sides. ये सब terms लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया. फाइन, ओके. नाउ व्हाट वी हैव गॉट 6x स्क्वायर्ड. अभी देखो लाइक वेरिएबल्स है कि नहीं है. 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर, यस दे आर लाइक वेरिएबल्स, सॉल्व करना है. सो 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर्ड. सो 3x स्क्वायर्ड, ओके. देन 7x 3x, यस. सो प्लस 7 माइनस 3 इज प्लस 4x. देन प्लस 2 प्लस 6 इज प्लस 8 equals to 0. So this is our final quadratic equation. 3x squared plus 4x plus 8 equal to 0. Is it a quadratic equation? Yes, because the highest power of the variable is 2. Okay, so ये quadratic equation है. So can you find the value of a, b and c? Obviously, है ना, explain तो कर दिया. So a is what 3, b 4, c 8. कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, कांस्टेंट c8, नेगेटिव साइन नहीं है, सो नी नॉट टू वरी. सो क्वेश्चन नंबर 3 सब नंबर 4 इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो दिस question number 1, question number 2 and question number 3 are entirely based on the introductory part which we have already discussed before starting the chapter. एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि नहीं, एक गेम वाला जो पार्ट था डिस्कस किया था, याद है. सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस आर ऑल बेस्ड ऑन दिस. फाइन. अभी जो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, हम लोग का नया कुछ ये आएगा, टॉपिक आएगा. ओके, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस्ड करेंगे. ओके, एंड विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस विद एन ईज. सो व्हाट एवर क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू होमवर्क, so please try to solve it by yourself. और जिसका हो गया, those who have solved it successfully, comment करो yes we have solved it. Just comment down below. Okay, so with that I will end my video lecture here. So see you shortly. Okay, जल्दी मिलेंगे हम लोग. Okay, thank you so much. So if you have liked this tutorial, if you want to share with your friends, feel free to share it. Okay, खुद का हेल्प क्यों, दूसरों को भी तो हेल्प होना चाहिए, isn't it? So feel free to share the videos. Okay, अगर मेरा ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया, so please like it and yes, don't forget to subscribe. Okay, because सब्सक्राइब करोगे जो नया वीडियोस आएगा ना, ओके, एवरी टाइम देखो, अभी कोई डिले नहीं होना चाहिए. ओके, एवरी टाइम कॉन्स्टेंटली वीडियो विल बी अपलोडेड. ओके, सो विथ पैशन, मेरा भी एक पैशन है, आप लोग का भी एक पैशन है, एक साथ मिलके हम लोग जॉय करेंगे. ओके, विल बी विक्टोरियस. ओके, एम्बोस का रिजल्ट एकदम टॉप पे जाना चाहिए. ओके, सो विद दैट आई एंड माई वीडियो लेक्चर हियर. थैंक यू सो मच.